جس میں کہ خاص طور پہ لوکل باڈیز کے حوالے سے بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، اور ہم نے یہاں ایک مثال قائم کی ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کو ہم ساتھ کیری کر رہے ہیں، اور ساتھ ملا کے ان کے ساتھ ہم شک بار پہ ہر شک کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں، اور اب تک جو کوئی 60% ہماری کوئی جوائنٹ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ متفقہ طور پہ ہم اسمبلی کے پاس جائیں اور یونانیمس اس کی اپروول ہو، اور اس کے اثرات بھی پھر بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ تاکہ کوئی بھی پارٹی اگر برسر اقتدار آئے گی تو اس کو پھر تبدیل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی آپ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، سب کو السلام علیکم. آج یہاں چودھری شجاعت صاحب کی رہائش گاہ پر ہم آئے تھے. ایک تو ان کی طبیعت کی جو ناسازی تھی اس حوالے سے ان کی عیادت کرنے، مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے تھے. ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور ہمیشہ دست شفقت بھی رہا ہے ایم کیو ایم کے دوستوں کے اوپر. تو ہم نے مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو سندھ میں بلدیاتی قانون ایک بنایا گیا تھا جس پر تمام ہی اپوزیشن کی اور ہم لوگ جو وفاق میں اتحادی ہیں وہ سب بھی اس کے اوپر متفق تھے کہ یہ بلدیاتی جو بل پاس کرایا گیا ہے یہ نامناسب ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے، جس پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس رکھی اور درخواست کی تھی. تو کراچی میں مسلم لیگ قاف کی طرف سے طارق حسن صاحب اس میں آئے اور انہوں نے ہمارے اس موقف کی تائید کی اور ایک یکجہتی کا اظہار کیا، اور جو قرارداد ہم نے پیش کی انہوں نے اس کو منظور کیا. اس کے بعد جو سندھ چیف منسٹر ہاؤس کے اوپر ہم ایک مظاہرہ کرنے گئے تھے، وہاں پر جو پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا اس کی بھی مذمت کی، اور ہم سے وہاں پر بھی ان کا وفد آ کے ملا اور انہوں نے ایک ہمارے کارکن کی شہادت بھی ہوئی، اس پر بھی انہوں نے ہم سے تعزیت کی. تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم چودھری صاحب کے پاس آئیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی مزاج پرسی بھی کریں. اور ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم لوگ ساتھ ہیں. وفاق میں بھی جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. کامر صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کی روایت ہے، آج تک کی تاریخ اگر دیکھ لی جائے کہ جب حکومت جانے والی ہوتی ہے تو آپ اس سے چھلانگے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اب پھر لگتا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے اور آپ چھلانگے لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ آپ پرانے کونسلے سے مطمئن ہیں یا نئے کونسلے کی تلاش میں ہیں، کیونکہ مہنگائی پہ ان کو بھی تحفظات آپ کو بھی ہیں، کوئی نیا کونسلہ تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ دیکھیں، پہلا سوال کہ ہم حکومت جاتی ہے آتی ہے، تو دیکھیں بنیادی طور پر ہم سب جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ورکر ہیں، وہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں کہ جن علاقوں کے لیے، جن علاقوں سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، ہمدرد ہیں، سپورٹرز ہیں، اور پھر پورے پاکستان کے لیے ہم کو ہمارے پاس اختیارات ہوں تو ہم اپنے لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں، اپنے اپنے حلقوں میں کام کرا سکیں، اسی لیے سیاست کرتے ہیں. تو ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ حکومت کے اندر بیٹھے اور پھر اختیارات حاصل کر کے اپنے علاقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کرائے، ڈیلیور کرے لوگوں کو. اسی سلسلے میں ہماری بارہا شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں، ہر پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے، آنے کی کوشش کرتی ہے، تو ہمارا بھی رائٹ ہے. یہ بتائیے گا آپ 5 سال کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں دونوں جماعتیں، یا بیچ منجدار تحریک اعتماد کی صورت عمران خان کو چھوڑ جائیں گے؟ خیر دیکھیں، یہ تو ابھی کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا، اور ابھی تو 2 سال رہتے ہیں نا، 2 سال رہتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے آپ دونوں اتحادی ہیں، ایک طرف وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عوام میں جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن جماعتوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی عوام میں جا رہے ہیں. تو آپ بحیثیت اتحادی کیا سوچ رہے ہیں
मतलब कौन किससे इस वक्त नाला है जो आवाम की तरफ अब देख रहा है? देखें जी, अवाम की तरफ तो हर वक्त ध्यान रहता है, तो इसीलिए तो हर जो कोई गलत काम आता है तो हम एजिटेट करते हैं और मिल के एक आवाज़ बुलंद करते हैं। कई चीज़ों को हमने, ख़राब चीज़ों को ठीक भी करवाया है। परवेज़ इलाही साहब ये बताइएगा कि कल परवेज़ इलाही साहब ये बताइएगा कि कल जो है जरदारी साहब आपके पास आए, उन्होंने मुलाकात की, उससे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की। जरदारी साहब क्या कोई पैगाम लेकर आए या उन्होंने मुस्लिम लीग नून से होने वाली मुलाकात से आपको आगाह किया, और एजेंडा क्या था आपकी मुलाकात का? एजेंडा तो जरदारी साहब ने जब मुझसे बात की तो उन्होंने कहा, मैंने जरदारी साहब ने कल जब आए तो उन्होंने कहा आने से पहले कि मैंने शुजात साहब की खबरगिरी के लिए हॉस्पिटल आ रहा था तो आपने मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स ने अलाउ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा अब मैं आ रहा हूँ घर पे उनकी खबर के लिए, और फिर खबर के लिए आए, और मेन तो मकसद यही था। साहब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं और आप हमेशा नाला भी रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन महंगाई के खिलाफ बातें करते हैं। आपके वजीर को उनके शहर में जलसागाह में इमरान खान ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, क्या इसके बावजूद भी आप इत्तेहादी रहेंगे इमरान खान के? देखें ये सारी बातें वजीर को नहीं दाखिल किसको नहीं दाखिल नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं मैं गया ही नहीं। रिकॉर्ड अपना दुरुस्त कर लिया करो यार, सवाल करने लगे, बाकी जो मर्जी करे करो। गए नहीं वजीर नहीं नहीं ये नहीं ना, रिकॉर्ड गए अपना नहीं, दुरुस्त कर लिया करो ना। ਇਹ ਵੀ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗਏ ही नहीं ਤੁਸੀਂ। यार वो पता क्या, नहीं इसलिए कि चीमा साहब ने अभी टेस्ट कराना था यार कोविड का। यार मेरा उस दिन मैं जवाब देना सर, नहीं मैं आपको जवाब मैं अर्ज कर देता हूँ। मैंने उस दिन कोरोना का टेस्ट करवाया था, उस दिन मैं नेगेटिव हुआ था। मैंने उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को इतना की थी कि भाई ये मेरी पोजीशन है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है, आप अपना, मैं गया नहीं, अंदर नहीं घुसने दिया। तो यार देखो चंगा भला सियाना जर्नलिस्ट है, तो यार तो सवाल की बात करना है। आपको वो बुलाते ही नहीं है। अच्छा बात गिला करते हैं हमें, जारी नहीं किया जाता। ये बातें हैं, इसके बावजूद आप इत्तेहादी। अच्छा गल सुनो ना, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਾ ਆਉਂਦੇ। इसके वाले से हम उनसे ज़्यादा कर रहे हैं उनके पुराने। जो सब ये बताइए कि आप समझते हैं कि मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है? देखें मेरी बात सुने ना, वैसे तो ये सवाल बनता है जो कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ये सवाल इनका इस तरह का है कि वो तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कोई चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। वो आप हमारे बयानात से अंदाज़ा। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, आप शरीफ बरादरान की गारंटी मांगी जरदारी से आपने, और ये बता दीजिएगा शरीफ बरादरान पे आपका एतबार है? शरीफ बरादरान पे एतबार है? बात ही नहीं हुई। सवाल नहीं वो कोई इस तरह की बातें होती रहती हैं। जब देखें ना, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती, अभी तो सारी बातें हैं। आपने कहा पौधी खाने में सामान तैयार हो, सामान तो फिर सर आप लोग मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी? अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान, थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। आमर साहब ये बताइएगा कि क्या आप दोनों जमातों का इस बात पे इत्तेफाक है कि हुकूमत को इकट्ठे ही छोड़ेंगे और रहेंगे तो इकट्ठे ही रहेंगे? देखिए हम सब सियासी जमातें हैं, हम सब के अपने अपने नज़रियात हैं, अपनी अपनी एक सोच है, और हम सब मेरा ख्याल है अपने अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। लेकिन हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं, जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। अच्छा आमिर खान साहब ये बताइएगा कि जो छोटी जमातें हैं, छोटे इत्तेहादी हैं, उनका ये मौक़िफ़ रहता है कि जिस हद तक हम हिस्सेदार हैं हुकूमत के बतौर इत्तेहादी, उतना ही हम बर्डन शेयर करेंगे हुकूमत का। तो अगर हिस्सा बढ़ जाए तो बर्डन ज़्यादा शेयर करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम अपना हिस्सा बढ़ाने के मूड में हम तो ये कहते हैं कि जो ये एक मिनिस्ट्री है ये भी हमसे ले लें, हमें कोई
ख्वाहिश नहीं है इसमें। अच्छा हमें ये बताइए गा चूँकि कराची का मसला भी बहुत ज़्यादा है और चौधरी साहब से जरदारी साहब भी मिले हैं, ये बताइएगा इन फ्यूचर आपका जगाव पीपल्स पार्टी की जानिब तो नहीं हो रहा और चौधरी बरादरान को सहूलतकारी तो नहीं करनी? देखिए, सियासत में सबसे मिला जाता है, ना कोई सहूलतकारी होती है। सियासत में सब एक दूसरे से मिलते हैं। जरदारी साहब आए हैं, ज़ाहिर है मिजाज कुर्सी के लिए आए हैं, अच्छी बात है, सबको एक दूसरे के साथ मिलते रहना चाहिए और सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। इस हद तक नहीं जाएं कि जहाँ पर इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें, तो ये रहना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर है हमारे राब्ता कमेटी, उन सब के कहने पर हम यहाँ आए थे बल्दियाती कानून के हवाले से और चौधरी साहब की मिजाज पुरसी के लिए। यहाँ सियासत एकदम गर्म हुई है, तो इस तरह ये सवालात आ रहे हैं, तो ये बातें जब जैसा चौधरी साहब ने फरमाया कि अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि बाहर से आने वालों का, ना मैं MQM ने किसी को यहाँ से बाहर भेजा है और ना रोकने का हमें कोई शौक़ है, ये रियासत का काम है, वो खुद तय करें। साहब एक कराची के हवाले से ही सवाल है, देखिए हमारा मैटर ही नहीं है, जिसने केस बनाए, जो रियासत का काम है वो देखें। यार वो बात सुने ना, बात सुने। हम तो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि लोकल बॉडीज़ को निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल कर। यहाँ भी हम कर रहे हैं, जो हम नया कानून बना रहे हैं ना, यहाँ भी हम कर रहे हैं निचली सतह तक इख्तियारात। इसकी स्पिरिट ही ये है कि आप इख्तियारात निचली सतह पे दें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। तो सब क्या ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन सब मिल भी जाए तो अदम एतमाद नहीं ला सकती जब तक MQM, मुस्लिम लीग कायदे आज़म और GDA इनके साथ ना खड़ी हो, क्या ये दुरुस्त है? वो जब ये अभी जब पक के कुछ चीज़ आएगी तो फिर बताएंगे आपको। यार तुसी इशारे से मगर जानते हो। अच्छा चौधरी साहब ये दसो कि उबले चावलों के नाल आलू मटर की जमात पाएगी। सर आखिरी सवाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत के और इत्तेहादियों के हालात अच्छे नहीं हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हुकूमत के लिए और इत्तेहादियों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत को कंधा फराहम करेंगे या कंधा वापस ले रहे हैं? देख लें, मेरी बात सुने, हमारी ये कोशिश रही है और हम अब भी कर रहे हैं कि इनको जो मौजूदा तकलीफ़ें हैं अवाम की और उनके मसाइल के हल के हवाले से ठोस तजावीज़ फिर देते हैं, फिर कोशिश करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।